Okay, so till now what we have seen in this course, particular course, so we have seen the different component in vacuum system. Okay, like we have seen pressure gauges. What are the different pressure gauges? Let's say Pirani gauge we have understood. We have understood the panning gauge. We have understood the rotary pump. We have also studied about the diffusion pump. We have already studied about the roughing line. Then we have studied about the backing line. These are the components which are involved. These are the components which are involved in vacuum system. Then we have seen how to do the deposition. How to do the deposition. This we have already seen in the lab. What are the different steps to, let's say if I wanted to deposit a film, what would be the different steps? Then in the lecture, we have seen that there are two different techniques, CVD and PVD. In CVD, we have seen the name of few CVDs like LPCVD, like PECVD, like thermal CVD. These are, we have only just very little, we have gone into these topics. But in PVD, we have thoroughly studied RF sputtering, DC sputtering, and we have studied the thermal evaporation. This we have also done in the lab also, that how to deposit a film, uh, let's say aluminum film on glass substrate, copper film on glass substrate using DC sputtering. Okay, so these are the techniques. Okay, now let's say the next topic is, let's say you have made a film. Let's say this is a substrate, and let's say on this substrate we have, let's say this is a glass substrate, and let's say on this substrate we have made a film. This is your film. Now what are the different characterization of that film you should do? So the very first characterization of the film is thickness measurement. As soon as you make a film, you need to find out the thickness of this film, how thick this film is. This is very, very important because there may be many factors why this is important. Number one, you need a precise control over the thickness. आपको एक particular thickness चाहिए किसी डिवाइस के अंदर. आप नहीं चाहते कि उस डिवाइस के अंदर उसकी थिकनेस बढ़े. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि लेट्स से यू आर वर्किंग विद ए मॉसफेट. मॉसफेट क्या होता है? MOSFET होता है metal oxide semiconductor field effect transistor. Let's say you are working with a MOSFET in which there is a drain source, there is a drain, and there is oxide, and let's say there is a metal. So this is metal, this is oxide, this is semiconductor. So this is metal, oxide, semiconductor. And since it's a field effect, if you will apply a field, then there will be effect on this transistor, particular transistor. कई बार क्या होता है, जैसे बीजेटी है, बीजेटी में क्या होता है, इफ यू विल अप्लाई ए करंट ऑन द बेस टर्मिनल, देन देयर विल बी इफेक्ट. Here if you will apply a voltage or a field, then you will see the effect. So this is basically a voltage control device. BJT is basically a current control device. Okay. So here the thickness of this oxide or thickness of any layer, it's not about the oxide, but oxide की thickness कुछ ज़्यादा ही sensitive है to the device. Meaning if you will change metal thickness, let's say the metal thickness is 300 nanometer, or let's say the metal thickness is 400 nanometer, and let's say you make it not 300, not 400, you make it, let's say 425 nanometer. Maybe it will not impact a lot on the device, but maybe the oxide thickness, it's not maybe, actually it is, the oxide thickness impact the properties, yeah, affect the properties of the transistor. So if you wanted to deposit here oxide of 2 nanometer, you don't want to be 3 nanometer. We don't want that the thickness should be 3 nanometer or 4 nanometer. If we want 2 nanometer, it means we want 2 nanometer, that's it. So this much of control, sometimes you want such a precise control. Sometimes because thickness के साथ properties change होती हैं. Sometimes because you need precise property control, precise properties control. आपको properties चाहिए.
ऐसी प्रॉपर्टी कि नहीं, अगर 400 नैनोमीटर से ऊपर होएगा तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी चेंज हो जाएंगी। कई बार क्या है कि फिल्म की थिकनेस से प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, लेकिन फिल्म की डिवाइस की फिजिक्स चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात? अलग अलग केसेस में अलग अलग बातें हैं। कहीं पे हो सकता है डिवाइस की फिजिक्स ही चेंज हो जाए, डिवाइस फिजिक्स, है ना। कहीं पर हो सकता है फिल्म की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं। दोनों ही बातों के लिए यू डोंट वांट टू मैनिपुलेट द फिल्म थिकनेस। So the very first experiment is thickness measurement. So what we do is हम एक डमी वो ले लेते हैं। हमने ग्लास सबस्ट्रेट ले लिया एंड इसके ऊपर एक रैंडम, कोई मान लो हमें 2 नैनोमीटर चाहिए, तो 2 नैनोमीटर को डिफाइन करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक रैंडम 20 मिनट का डिपोजिशन ले लिया, 20 मिनट का डिपोजिशन ले लिया और 20 मिनट में थिकनेस मेजर कर ली कि कितनी थिकनेस आई। तो मान लीजिए 20 मिनट में आई 400 नैनोमीटर। तो हमने रेट निकाल ली, क्या रेट निकल के आई, 20 नैनोमीटर पर मिनट। ये डिपोजिशन रेट हो गई। And now if let's say somebody wants 600 nanometer, so definitely he or she will be depositing the film for 30 minutes. This is how thickness or deposition rate has been calculated. Now the question is, how will you calculate the thickness? What are the different methods to find out the thickness of the film, है ना? So यहाँ कुछ methods लिखे हुए हैं, however थिकनेस मेजरमेंट्स के ऊपर पूरी की पूरी बुक्स हैं। यहाँ कुछ बहुत ही ब्रीफली हम एक दो चीजों को देखेंगे। थिकनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिन फिल्म पैरामीटर्स सिंस इट लार्जली डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ द फिल्म। ये फिल्म की प्रॉपर्टी को डिपेंड करता है और कई बार फिल्म की थिकनेस चेंज होने से डिवाइस की फिजिक्स ही चेंज हो जाती है। डिवाइस की फिजिक्स चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी मटेरियल की, लेकिन डिवाइस की फिजिक्स चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कि ऑक्साइड है यहाँ पे मेटल में। अब यहाँ ऑक्साइड की एक थिकनेस है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्साइड की थिकनेस को टनल नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों क्रॉस नहीं कर सकता? लेट से ऑक्साइड की थिकनेस 10 नैनोमीटर है, तो यहाँ पे लेट से इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ा बैरियर है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए ये फिल्म एक बैरियर का काम कर रही है, क्योंकि ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड हमारा इंसुलेटर होता है। तो मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर का काम कर रही है, लेकिन आपने इसको घटा के 2 नैनोमीटर कर दिया गलती से। हो सकता है कि 2 नैनोमीटर की ऑक्साइड थिकनेस इतना बैरियर क्रिएट ना कर पाए और इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से टनल हो जाएं। सो दिस इज हाउ द फिजिक्स ऑफ द डिवाइस कैन चेंज। प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, प्रॉपर्टी अभी भी वैसे ही है, बस क्या हुआ, थिकनेस कम होने से अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग वो जो है वो इंक्रीज हो गई। कोई चीज इतनी बड़ी थिक है तो हो सकता है यहाँ तक वो टनल ना कर पाए, लेकिन कोई बहुत थिन है तो हो सकता है क्वांटम फिजिक्स लग के कोई कोई क्योंकि क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली किस जगह पे है, नोबडी नोस। प्रोबेबिलिटी पता है कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है। तो इस तरीके से थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। ऑलमोस्ट ऑल पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज ऑन थिन फिल्म्स डिपेंड ऑन द थिकनेस। प्रॉपर्टी भी सारी की सारी थिकनेस पर डिपेंड करती है, जैसे मोबिलिटी हो गई, जैसे कंडक्टिविटी हो गई, जैसे बैंड गैप हो गया। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी फिल्म की थिकनेस पर डिपेंड करती है। ओके, द थिन फिल्म इज ट्रांसपेरेंट। अगर कोई थिन फिल्म ट्रांसपेरेंट है और वो ऑप्टिकल रीजन में है इंक्लूडिंग IR UV, ठीक है ना, then we can use optical methods. So there are two methods, एक optical methods होते हैं और एक दूसरे टाइप के methods होते हैं जिनको हम स्कैनिंग मेथड कहते हैं। स्कैन कर लिया, सरफेस को स्कैन कर लिया और स्कैन करके हमने थिकनेस का पता लगा लिया कि क्या थिकनेस है। So if the film is transparent देन ऑप्टिकल मेथड यूज किए जा सकते हैं। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ट्रांसमिट कर लिया, दूसरी फिर एक पहले 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कर लिया, फिर 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कर लिया। इस तरीके से डिफरेंट वेवलेंथ की डेप्थ होती है कि ओके 500 नैनोमीटर की है तो ये इतनी डेप्थ तक ही जा सकती है ये लाइट। ओके, उस डेप्थ के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड दोज मेथड्स आर नोन एज ऑप्टिकल मेथड्स। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, आई एम जस्ट टेलिंग यू that what is the importance of the film thickness. Yes, film thickness is the very first characterization one should do. There are methods, there are optical methods, there are some other methods. अगर फिल्म की थिकनेस, फिल्म जो है ओपेक है, मान लीजिए फिल्म एक ऐसी है मेटल की एल्यूमिनियम फिल्म है जो कि ओपेक है, जहां से कोई ट्रांसमिट ही नहीं हो सकती लाइट, then we use
अदर मेथड्स, है ना। कौन से अदर मेथड? स्कैनिंग वाले ही मेथड हम यूज कर लेते हैं। ओके, मेथड्स कौन कौन से मेथड्स हैं? प्रोफाइलोमेट्री मेजरमेंट्स, है ना। एक होता है प्रोफाइलोमेट्री मेजरमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोफाइलोमेट्री, इफ यू कैन मास्क पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग डिपोजिशन इन ऑर्डर टू हैव ए शार्प स्टेप बिटवीन कोटेड एंड अनकोटेड जोन। तो प्रोफाइलोमेट्री मेजरमेंट कैसे करते हैं? प्रोफाइलोमेट्री मेजरमेंट ऐसे करते हैं कि आपने एक सबस्ट्रेट लिया और सबस्ट्रेट के ऊपर इतने पोर्शन को आपने मास्क कर दिया, इतने पोर्शन को मास्क कि यहाँ पे फिल्म डिपॉजिट ना हो। आपने कोई टेप चिपका दी, आपने कोई मोलिब्डेनम का पीस रख दिया और यहाँ पे आपने फिल्म को डिपॉजिट होने दिया। मान लो फिल्म की थिकनेस डिपॉजिट होते 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 इतनी डिपॉजिट हो गई। अब बाद में आपने ये पीस को रिमूव कर लिया, जो पीस आपने मास्क लगाया था उस मास्क को आपने रिमूव कर दिया। अब ये आपका फिल्म का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये आपने एक स्टेप क्रिएट कर दिया, एक शार्प स्टेप क्रिएट कर दिया यहाँ पे, है ना। अब आप क्या करते हो? अब आप प्रोफाइलोमेट्री करते हो। प्रोफाइलोमेट्री मतलब इस सरफेस का प्रोफाइल का एक ग्राफ निकालते हो। सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक टिप होती है, उस टिप को कहते हैं कैंटिलीवर। ये टिप होती है और इस टिप को कहते हैं कैंटिलीवर, है ना। ये कैंटिलीवर, ये टिप देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसी कुछ निडल सी होगी, पर ये कैंटिलीवर इतना स्ट्रॉन्ग होता है डायमंड का और इतना ज्यादा थिन होता है, इतना थिन होता है कि ये इस सरफेस से जब लगकर स्कैन करता है, व्हेन इट स्कैन द सरफेस, actually there is a force between this tip atoms and the atoms which are sitting over the substrate. उनके बीच में एक एटॉमिक फोर्स लगता है और उस फोर्स को थिकनेस में बाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना थिकनेस है। सो वो फोर्स जैसे यहाँ पे वो पहुंचता है तो यहाँ पे उसको एटम्स दिखते हैं, तो वो स्कैन होके वो ऊपर जाता है। तो बेसिकली एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर एक इस तरीके का एक ग्राफ आपको मिलता है देखने के लिए। फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ आपको देखने के लिए मिलता है और फिर वो आप हाइट मेजर कर लेते हो कि ये हाइट कितनी निकल के आई। वो इंस्ट्रूमेंट्स में सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर उस हाइट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तरीका होता है प्रोफाइलोमेट्री मेजरमेंट्स का। ऐसे ही एक एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी होती है। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जस्ट मैं आपको नाम बता रहा हूँ सिंपली, और इसमें ज्यादा कुछ मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ये माइक्रोस्कोपी भी बहुत ज्यादा यूज होती है। किसके लिए? फिल्म की रफनेस को देखने के लिए। फिल्म रफनेस, है ना। इससे हम क्या करते हैं? हम फिल्म का सरफेस देखते हैं कि फिल्म का सरफेस कैसा है एटॉमिक लेवल पर। नॉट ऐसे कि ऐसे तो जाहिर सी बात है, ऐसे तो पूरा का पूरा वो स्मूथ ही है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर ये सरफेस कैसा है वो देखने के लिए हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसका भी सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही प्रिंसिपल है कि हम क्या करते हैं कि एक स्कैन करते हैं और एटॉमिक फोर्स लगता है, उस एटॉमिक फोर्स की वजह से हम स्कैनिंग बेसिकली कर लेते हैं और हमें एक आइडिया मिल जाता है कि फिल्म की थिकनेस, ये हमारी फिल्म की थिकनेस हो गई। ओके, सिमिलरली देयर आर मेनी अदर मेथड्स, स्कैनिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक और होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखी हुई नहीं है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, शॉर्ट में इसको कहते हैं SEM, है ना। तो यहाँ सब में करनी आपने स्कैनिंग ही है। अब डिपेंड करता है कि आप स्कैनिंग कैसे कर रहे हो। आप किसी कैंटिलीवर को लेके कर रहे हो और बीच में एटॉमिक फोर्स को मेजर कर रहे हो, आप किसी इलेक्ट्रॉन बीम को ले रहे हो और इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन कर रही है और इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्लेक्ट होके आ रही है, आप किसी लेजर को ले रहे हो और लेजर का रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो कि लेजर का रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है। ये सब इन बातों पर डिपेंड करता है और इसमें सब में मेथड यही है कि आपने बेसिकली स्कैन करना है प्रोफाइल को, या फिर इलेप्सोमेट्री भी यूज होती है थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए। ये आपके लिए तब काम के हैं जब आप कभी रिसर्च करने के लिए जाएंगे, तब आपको इन सारी चीजों के नाम उस समय सुनने को मिलेंगे। किसी भी फैब लैब में आप जाएंगे तब आपको AFM, इलेप्सोमेट्री, ये सब चीजों के नाम सुनने को मिलेंगे।
ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मेटलाइजेशन. सो थिकनेस में हमारा सिर्फ इतना ही था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थिकनेस मेजरमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स. सो नंबर वन मेथड इज प्रोफाइलोमेट्री मेजरमेंट्स, नंबर टू इज स्कैनिंग मेजरमेंट्स. स्कैनिंग में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग में एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग में लिप्सोमेट्री, ये सारे के सारे आपके स्कैनिंग में आते हैं. प्रोफाइलोमेट्री में सरफेस प्रोफाइलोमीटर के नाम से एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम मेजर करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेटलाइजेशन. मेटलाइजेशन किसे कहते हैं और मेटलाइजेशन क्या इंपॉर्टेंट है? ये सारे के सारे वो प्रोसेस आएंगे अब जो हमारे आईसी प्रोसेसेस के पार्ट है. आईसी के प्रोसेसेस में जो हमारे पार्ट, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, हम बेसिकली उन प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं. तो मेटलाइजेशन क्या प्रोसेस है? मेटलाइजेशन में करते क्या है? तो मेटलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटल को डिपॉजिट करते हैं. मान लीजिए हम आईसी बना रहे हैं. आईसी बनाते समय जब हमें मेटल डिपॉजिट करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से जब वो आईसी गुजरेगी, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम मेटलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो नाउ दिस इज नोन एज मेटलाइजेशन. तो मेटलाइजेशन की हमारी डेफिनेशन क्या हो गई? मेटलाइजेशन की सिंपल हमारी डेफिनेशन हो गई कि द प्रोसेस that deposit the metal thin film on wafer surface is known as metallization. Okay, just a minute. Next slide is okay. So what are the different application of metallization? क्या क्या एप्लीकेशन है मेटलाइजेशन के? तो जैसे मेटलाइजेशन का एक एप्लीकेशन है इंटरकनेक्शन. इंटरकनेक्शन मीनिंग व्हाट? मान लीजिए आपने, अगर आपको याद हो यूईसी 001 कोर्स में आपने मान लो एक आईसी देखी थी, एंड गेट की आईसी देखी आपने, एंड गेट की आईसी, आपने नैंड गेट की आईसी देखी, आपने नोर गेट की आईसी देखी. ये सब आपने आईसीस देखी. मान लीजिए इन आईसीस के अंदर क्या होते हैं, कोई एंड गेट है. अब ये एंड गेट दिखता तो ऐसे, लेकिन इस एंड गेट के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांजिस्टर का सर्किट होता होगा. तो वो सर्किट जो ट्रांजिस्टर का इसके अंदर होता है एंड गेट की आईसीस के अंदर, अब मान लो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, दिस इज योर वन ट्रांजिस्टर लेट्स से, है ना, ये आपका एक ट्रांजिस्टर हो गया. मान लीजिए ऐसे ही आपने एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा रखा है. अब मान लीजिए इनके दोनों के आपको बेस को या कलेक्टर को मान लीजिए कनेक्ट करना है. तो ये जो कनेक्शन है इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, ये जो हम दोनों के कॉन्टेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, या दोनों के कलेक्टर को लेट से हम कनेक्ट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेटलाइजेशन. ये मेटल के थ्रू कर रहे हैं. तो ये जो इंटरकनेक्शंस हो गए, ये आपस में जो इंटरकनेक्शंस बना रहे हैं हम, ये बेसिकली कहलाता है इंटरकनेक्शन. सो यहाँ पे यूज होता है मेटल का. ओके, यहाँ तो होना ही है यूज, बिल्कुल सही बात है. गेट एंड इलेक्ट्रोड्स, गेट एंड इलेक्ट्रोड्स में मेटल का बहुत यूज होता है. गेट एंड इलेक्ट्रोड्स मतलब गेट एंड इलेक्ट्रोड्स मतलब जैसे ये हमारा मॉस बन गया. मॉस के अंदर मैंने बताया ना कि ये ऑक्साइड होता है आपका और यहाँ पे मेटल होता है. तो ये जो मेटल होता है इसको गेट बोलते हैं, गेट, और इसको सोर्स टर्मिनल बोलते हैं, इसको ड्रेन टर्मिनल बोलते हैं. जैसे हम बीजेटी के अंदर एक को एमीटर बोलते हैं, एक को हम बेस बोलते हैं, एक को हम कलेक्टर बोलते हैं. जिस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ पे मॉसफेट के अंदर ड्रेन, सोर्स एंड गेट बोलते हैं. तो वो गेट बनाने के काम में मेटल बहुत ज्यादा आता है, और ये आईसी में यही इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आईसी के अंदर, कि यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा यूज होता है. ओके, इलेक्ट्रोड्स बनाने में मान लो ये इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं, सोर्स बना हुआ है, ड्रेन बना हुआ है. ये जो इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर इसका बहुत यूज होता है. ओके, और कहाँ यूज होता है? माइक्रो मिरर, इनके अंदर बहुत यूज होता है. माइक्रो मिरर, ये वीडियो, जो वीडियो प्रोसेसिंग करते हैं लोग, जो इमेज प्रोसेसिंग होती है ऐसे ही वीडियो प्रोसेसिंग होती है. वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर छोटे 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 माइक्रो मिरर्स बनाने होते हैं. तो उन छोटे छोटे माइक्रो मिरर्स के अंदर ये यूज होता है मेटल्स का. फ्यूज कहीं पे बनाने हो तो फ्यूज के अंदर मेटलाइजेशन की जरूरत होती है, मेटलाइजेशन यूज होता है. इन सारी जगहों पे मेटलाइजेशन के यूज होते हैं, है ना. सो
ओके, करते कैसे हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मेटलाइजेशन कि हमने देखा, जैसे डीसी स्पटरिंग से देख लिया या थर्मल थर्मल इवेपोरेशन से देख लिया। इन सब चीजों से हम यूज करते हैं। कौन कौन सी कंडक्टिंग थिन फिल्म्स जनरली कौन कौन सी थिन फिल्म्स जो है वो मार्केट के अंदर मिलती हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने कभी भी नाम नहीं सुना होगा, हमने मेटल के नाम जनरली कौन से सुने हैं? गोल्ड सुना है, सिल्वर सुना है, प्लेटिनम सुना है ना, कॉपर सुना है, एल्यूमिनियम सुना है, ये हमने मेटल के नाम सुने हैं। पॉलीसिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटेरियल, पॉलीसिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटेरियल है ना, पॉलीसिलिकॉन, जो शायद आपने सुना भी ना हो कभी। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अच्छा, कहाँ यूज होता है? बात आती है कि कहाँ यूज होता है। तो पॉलीसिलिकॉन जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा आईसीस में आज की डेट में यूज होता है, इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम या इन सब की जगह पॉलीसिलिकॉन। पॉलीसिलिकॉन का मतलब क्या है, क्या मीनिंग क्या होता है पॉलीसिलिकॉन? हम इसको पॉलीसिलिकॉन कह क्यों रहे हैं, क्या मीनिंग है इसका? तो पॉलीसिलिकॉन का मतलब ये है कि इट्स बेसिकली ए काइंड ऑफ ए सिलिकॉन, बट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सिलिकॉन इज पॉलीक्रिस्टलाइन। आपने जैसे 3 स्टेट पढ़ी होंगी ना मटेरियल की, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस एंड सेमी क्रिस्टलाइन। तो ये सेमी क्रिस्टलाइन में मतलब ये एक तरीके का आपका जो है पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। इसके पीछे का रीजन है कि क्यों पॉलीसिलिकॉन यूज करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने मॉसफेट बनाया, तो ये आपने ऑक्साइड बना दिया और ये आपने मेटल बना दिया, और ये जो मेटल की बात हो रही है ये मेटल पॉलीसिलिकॉन का बना दिया। अब होता क्या है कि इस मॉसफेट के अंदर बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं जो 1000 डिग्री सेल्सियस पे, 1200 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे आपको ऑपरेट करने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो सोर्स और ये ड्रेन जो बनते हैं ये बहुत हाई टेम्परेचर पे बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए मेटल को एल्यूमिनियम रख देंगे, तो क्या होगा, जब आप इन हाई टेम्परेचर पे इसको करने जाएंगे तो ये एल्यूमिनियम पूरा का पूरा यहाँ से मेल्ट होके खत्म हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन का बहुत यूज होता है कि ओके पॉलीसिलिकॉन हमने डिपॉजिट कर दिया, एक्टिंग एज ए मेटल, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है तो ये मेटल की तरह एक्ट कर रहा है, मगर साथ के साथ ये अलाउ कर रहा है आपको जो फर्दर प्रोसेस है, फर्दर हाई टेम्परेचर प्रोसेस है, वो ये खराब नहीं होने दे रहा है ये मेटल, ये एज इट इज इसके ऊपर रह रहा है ना। तो ये चीजें पॉलीसिलिकॉन का बहुत यूज होता है। एल्यूमिनियम का बहुत पहले यूज होता था, मोस्ट कॉमनली यूज मेटल, द फोर्थ बेस्ट कंडक्टिंग मेटल, इट वाज यूज्ड फॉर गेट। ये गेट के लिए मिड 1970 के आसपास यूज होता था। अब 30-40 ईयर से पॉलीसिलिकॉन कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है। टाइटेनियम, टाइटेनियम का ना एडिशन बहुत अच्छा होता है। हर एक का मटेरियल का अपना अपना एडिशन होता है कि एल्यूमिनियम एडिसिव है नहीं है, टाइटेनियम बहुत अच्छा एडिसिव होता है इसका। तो टाइटेनियम को लोग ग्लू की तरह काम करते हैं, ग्लू की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। ग्लू की तरह कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इट कैन इंश्योर फिल्म अटैचमेंट ऑफ गोल्ड नैनो स्ट्रक्चर ऑन ग्लास और सिलिकॉन सबस्ट्रेट। मान लीजिए आपने ग्लास सबस्ट्रेट लिया, ग्लास सबस्ट्रेट के ऊपर आपने मान लो गोल्ड के नैनो डॉट्स बनाने हैं ऐसे। हो सकता है वो नैनो डॉट्स गोल्ड के इसके ऊपर इतने स्टिक ना हो, इतना एडिशन उनको ना मिले। तो क्या किया कि पहले ग्लास के ऊपर 1 या 1.5 नैनोमीटर की या 2 नैनोमीटर की पहले टाइटेनियम की फिल्म डिपॉजिट कर ली, और उसके ऊपर फिर ग्लास, इसके ऊपर फिर गोल्ड के जो है नैनो पार्टिकल्स बना दिए। तब ये एडिशन बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए इसको एज ए ग्लू लोग यूज कर लेते हैं। टाइटेनियम नाइट्राइड, ये भी बहुत अच्छा मेटल है, इम्प्रूव ट्रांजिस्टर परफॉर्मेंस। टाइटेनियम नाइट्राइड आजकल लोगों ने शुरू कर दिया है इन कॉम्बिनेशन विद गेट डाइलेक्ट्रिक्स, जो ये हैफनियम सिलिकॉन ऑक्साइड जैसे ये है ना, हैफनियम सिलिकॉन ऑक्साइड, या हायर परमिटिविटी वाले कंपेयर टू स्टैंडर्ड सिलिकॉन ऑक्साइड। जो लोग SiO2 की जगह कोई और हायर परमिटिविटी का, हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो यूज करते हैं ऑक्साइड, उनके लिए टाइटेनियम नाइट्राइड एक बहुत ही अच्छा मेटल है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन ऑक्साइड के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि पॉलीसिलिकॉन ही अच्छा रहेगा। अरे भाई, कोई चीज नीचे सिलिकॉन की है, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड है, तो ऊपर सिलिकॉन ही डिपॉजिट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। लेकिन अगर आपने नीचे सिलिकॉन हटा के मान लो कोई हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, हायर परमिटिव वाला आपने कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपने ऑक्साइड लगाया है, तो उसके ऊपर टाइटेनियम नाइट्राइड बहुत अच्छा काम करता है। तो ये दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंडक्टिंग थिन फिल्म्स है ना। तो ये आपने थोड़ा सा इनके बारे में आपको जरूर एक आइडिया होना चाहिए। ओके, टंगस्टन, टंगस्टन बहुत ही यूज होता है। कौन सा? हैज द पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर थर्मल मल्टीलेयर कोटिंग ड्यू टू इट्स हाई सोलर ऑब्जर्प्शन। तो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, आपने चूज करना है कि आपने फॉर पर्टिकुलर
फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप जो है किसको यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे टंगस्टन है, तो टंगस्टन का क्या लिखा हुआ है, सोलर थर्मल मल्टीलेयर कोटिंग ड्यू टू इट्स हाई सोलर एब्जॉर्प्शन। तो ये सोलर एब्जॉर्प्शन इसका बहुत अच्छा है टंगस्टन का। बाकी सबका क्या है, सोलर रिफ्लेक्शन होता है, तो इसका सोलर एब्जॉर्प्शन अच्छा होने की वजह से हम इसको यूज करते हैं सोलर थर्मल मल्टीलेयर कोटिंग यूनिट्स के अंदर। सुपीरियर थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है कि थर्मली मतलब ये नहीं है कि बाद में हट गया। एंड डिफ्यूजन बैरियर कैरेक्टरिस्टिक्स, और डिफ्यूजन बैरियर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बहुत अच्छी है। मान लिया जाए कल को आपने एक जगह मेटल डिपॉजिट करके रखा हुआ है और आप यहाँ साइड में डिफ्यूजन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेटल के नीचे डिफ्यूजन ना हो, तो आपने क्या किया, अब आप बचाओगे कैसे, आपने यहाँ पे मेटल डिपॉजिट कर दिया, तो क्या होता है कि आप सिंपली उसको अपना मेटल डिपॉजिट है यहाँ पे आपका ये टंगस्टन, तो टंगस्टन डिफ्यूजन बैरियर की तरह काम करेगा, और अगर ये डिफ्यूजन बैरियर की तरह काम करेगा तो जाहिर सी बात है आपको नीचे जो है कोई डिफ्यूजन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ऐसे कॉपर फिल्म यूज होती है, टेंटालम फिल्म यूज होती है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट अपने इनके नाम है बेसिकली मेटल्स के जो यूज होते हैं। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की बात बताता हूँ आपको, आपको जान के हैरानी होगी। एक बार मैंने आईसी फैब्रिकेशन का एक कोर्स पढ़ाया था, आईसी फैब्रिकेशन का। तो उसमें क्या हुआ, स्टूडेंट्स को हमने कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए दे दिए कि बेटे आप ये प्रोजेक्ट करके लाना। तो प्रोजेक्ट में क्या दिया कि जैसे प्रोजेक्ट के अंदर मान लिया जाए ये दे दिया कि आपने एक ना वो बनाना है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बनाना है। तो मैंने उनको अपने पास से सिलिकॉन के कुछ पीसेस दे दिए, बड़े महंगे पीस होते हैं वो, सिलिकॉन के पीस दे दिए। मैंने कहा इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने ना एक बोल्ट करके लाना है, मेटल डिपॉजिट करके लाना है मेटल, और आपने फिर इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि ये ओमिक बना है या ये शॉर्ट की बना है। ये मैंने दे दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा इसके ऊपर ना सिल्वर पेस्ट आती है, सिल्वर पेस्ट, वो सिल्वर पेस्ट लगा के, और सिल्वर पेस्ट लगाने के बाद उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे देना और तब आईवी करना। बोले ठीक है। सारे लोग उठ के, क्या हुआ, पूरी की पूरी क्लास, थर्ड ईयर की क्लास थी, सब पेंट की दुकान पे जाके खड़े हो गए, जहाँ पेंट बिकते हैं ना, ये घरों पे करने वाले पेंट, पेंट की दुकान पे खड़े हो गए, वहां जाके बोले कि जी सिल्वर कलर का पेंट दे दो। तो एक सिल्वर कलर के पेंट में और एक सिल्वर में डिफरेंस नहीं पता, समझ रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के साथ थर्ड ईयर में अगर ऐसा हो रहा है, सो बहुत ज्यादा ये ऐसी बात है कि अरे मतलब कमाल है, ऐसे शॉकिंग वाली बात है ये कि थर्ड ईयर में आके अगर हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिल्वर कलर एंड ए सिल्वर मटेरियल, है ना। कलर तो भाई कैसा भी हो सकता है, कलर उसके जैसा दिख रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है ना हर चमकती हुई चीज गोल्ड नहीं होती ना। तो वही वाली बात हो गई, जो हम बचपन में मुहावरे सुनते हैं वो बिल्कुल हकीकत में बदल गए। इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ कि दीज आर द मटेरियल्स एंड दीज आर द कंडक्टिंग मटेरियल्स यूज फॉर द कंडक्शन, यूज फॉर द चार्ज कैरियर कलेक्शंस, है ना। इन सब के लिए ये यूज होते हैं। ओके, so now these are the melting points of different metals, है ना। एल्यूमिनियम का जैसे है 650 के आसपास हो गया, सिल्वर का 950, गोल्ड का 1000, कॉपर का 1000, पैलेडियम का 1500, प्लेटिनम का 1700 एंड टाइटेनियम का 1600, निकल का 1400, क्रोमियम का ये। फिर ये मेथड ऑफ डिपोजिशन आ गए, क्योंकि इनके मान लो टेम्परेचर कम है तो ये थर्मल इवेपोरेशन से हो सकते हैं। मान लीजिए जिनके टेम्परेचर ऐसे हैं जो थर्मल इवेपोरेशन से नहीं हो सकते, जिनके टेम्परेचर बहुत हाई है ना, तो उनको हम क्या करते हैं, फिर दूसरे प्रोसेस से, स्पटरिंग से, इलेक्ट्रॉन बीम से, इन सारे प्रोसेस से हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इनको वो करने की, डिपॉजिट करने की। तो ये मेथड ऑफ डिपोजिशन हो गए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज ऑक्सीडेशन। अब ये आईसीस के हमारे सारे के सारे प्रोसेस चल रहे हैं, आईसी के प्रोसेस। जब एक आईसी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरती है, यहीं पे आप लोगों की जरूरत है। फैब लैब के अंदर यहीं पे जरूरत होती है एक बीटेक, एक पीएचडी स्टूडेंट्स, एक एमटेक स्टूडेंट्स की कंपनी को। वो कंपनी ये देखना चाहती है, मान लीजिए एक आईसी है, एक आईसी में 50 प्रोसेस, 100 प्रोसेस इन्वॉल्व है, 50 to 100 प्रोसेस क्योंकि एक लिथोग्राफी प्रोसेस होता है, आपने उसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है, एक लिथोग्राफी प्रोसेस होता है। उस एक लिथोग्राफी प्रोसेस के अंदर ही देयर आर 50 प्रोसेसेस इन्वॉल्व,
है ना, लिथोग्राफी के अंदर ही। तो एक आईसी 100 प्रोसेस से होकर निकली, है ना, 1 2 3 ऐसे करते 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 100 प्रोसेस से निकली। अब 100 प्रोसेस से निकलने के बाद आईसी की परफॉर्मेंस को चेक किया। जब आईसी की परफॉर्मेंस को चेक किया तो लेट से उसकी परफॉर्मेंस में मान लीजिए वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि एंड गेट इस तरीके से काम करना चाहिए, लेट से वो वैसे काम नहीं किया। तब एक वहां पे बैठे हुए इंजीनियर्स को ये पता लगाना होता है कि इन विच प्रोसेस देयर इज ए प्रॉब्लम, है ना, किस प्रोसेस के बाद प्रॉब्लम है, कहाँ पे मुझे आई नीड टू वर्क अपॉन, किस जगह पे मुझे वर्क करने की जरूरत है, सो दैट मैं फाइंड आउट कर लूं कि भाई ये आईसी में नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो। इसलिए यहाँ पे इंजीनियर्स की जरूरत होती है, इसलिए रिक्रूटमेंट करती है कंपनी, क्योंकि कहाँ पे प्रॉब्लम है ये एक टेक्निकल बंदा ही बता सकता है। वो ऑक्सीडेशन देख के, वो मेटलाइजेशन देख के बता सकता है कि यस मेटलाइजेशन प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम हुई है या कहाँ प्रॉब्लम हुई है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी अभी देखा हमने सारे का सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्लीट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आप आईसी देखोगे, जितनी भी आईसीज आप देखोगे, सारी की सारी आईसीज मॉसफेट बेस्ड होती हैं, मॉसफेट बेस्ड। मॉसफेट कैसे बनता है अभी अभी मैंने आपको सर यस सर एक डाउट है। बोलिए बेटे। सर ये तो हम तो भी नहीं बता पाएंगे, जैसे हम उधर एक्सपेरिमेंट करते थे हमें थोड़ी पता चलता था कि आईसी खराब है कि नहीं, पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाता था फिर मैम कहती थी खराब है चेंज करो। यस यस बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आईसीज क्या होती हैं, लॉट्स में बनती हैं। आईसी की एक लॉट होती है, मान लो आपने 100 प्रोसेस करने हैं, तो 100 जब प्रोसेस आपने करने हैं तो ये नहीं है कि एक प्रोसेस एक बार में 50 आईसी बनाई, एक बार में पूरी लॉट यहाँ से स्टार्ट होती है। मान लीजिए 20 वेफर आपने यहाँ पे रख दी, 20 वेफर्स, वेफर्स ऑफ सिलिकॉन, हर सिलिकॉन वेफर्स के ऊपर आईसी बननी है, लेट से आपने 20 रख दी, 20 की 20 100 प्रोसेस से यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। और 100 प्रोसेस से गुजरने के बाद आईसी टेस्टर लगा हुआ है, जो आईसी टेस्टर ये टेस्ट करेगा कि वेदर द आईसी की जो परफॉर्मेंस हमें चाहिए, मान लीजिए इसका VIL हमें ये चाहिए, इसका VOH हमें इतना चाहिए, इसका IIL हमें इतनी चाहिए, ये आई डोंट नो आपने लॉजिक पैरामीटर्स पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, कि मान लो इनपुट पे लॉजिक लो के लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता है, वो हर एक आईसी का डिफाइंड होता है कि लेट से 2.03 वोल्ट तक वो लो रहेगा। तो ये आईसी टेस्टर में आपने टेस्ट कर लिया, मान लीजिए पूरी की पूरी लॉट करेक्ट निकल के आ गई। जब पूरी की पूरी लॉट करेक्ट निकल के आ गई तब तो उनको मैन्युफैक्चर करके, उनको पैक करके किसी यूजर्स के पास तक हमने उसको भेज दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इसके अपोजिट मान लीजिए कि आपने आईसी को इस तरीके से किया, मान लीजिए आपने 100 प्रोसेस से आईसी निकाली, आईसी टेस्टर में टेस्ट किया, और लेट से वहां पे उसने कह दिया कि VIL जो है इसका बराबर नहीं है। जैसे आप आईसी कैसे चेक करते थे लैब के अंदर, आप एक आईसी को लगाते थे और उसमें दो एंड गेट में दो इनपुट्स होते थे, एक आउटपुट, तो आप 1 पे 1 2 पे भी 1 ऐसे लगाते थे और फाइनली आउटपुट को 1 देखते थे। तो ये हो गया लैब स्केल पे बहुत छोटा देखना। इंडस्ट्री स्केल पे उन सारी आईसीज को इमीडिएटली, आईसी टेस्टर्स होते हैं तो वहां से आईसी बन के आई, इमीडिएटली उनको आईसी टेस्टर में डाल के इमीडिएटली उनको कर लिया कि हाँ भाई ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट नहीं है तो आपको हर स्टेप्स के बाद, हर स्टेप्स के अपने कैरेक्टराइजेशन होते हैं, हर स्टेप्स के अपने अलग कैरेक्टराइजेशन होते हैं। मान लिया जाए ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के अपने अलग कैरेक्टराइजेशन होंगे कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन कितना हुआ है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी मुझे रफनेस कितनी चाहिए, उसकी मुझे कंडक्टिविटी कितनी चाहिए। तब आपने हर डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर वो कैरेक्टराइजेशंस करने हैं कि ओके जब यहाँ से सिलिकॉन वेफर गुजर रही है तो क्या यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आप एक साथ सारे के सारे कैसे चेक करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे प्रोसेस। एक प्रोसेस किया, चेक कर लिया, दूसरा प्रोसेस किया, चेक कर लिया। अगर सारे के सारे प्रोसेस में जहां पे भी प्रॉब्लम आएगी देन उस प्रोसेस को हम दोबारा ऑप्टिमाइज करेंगे। क्या होता है कि मान लीजिए हमने ऑक्साइड के लिए अपना टाइम फ्रेम फिक्स कर लिया कि ओके सिलिकॉन ऑक्साइड हम करते हैं, इतनी गैस फ्लो करनी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैस डेफिनेटली सिलिकॉन ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस फ्लो करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन गैस फ्लो करनी है, लेट से ऑक्सीजन गैस का इतना प्रेशर रखना है, लेट से उसका इतना फ्लो रखना है, और लेट से उसकी टाइमिंग 15 मिनट रखनी है। लेकिन ये पर्टिकुलर जब एक चैम्बर की कंडीशंस थी, पता चला किसी ने चैम्बर ओपन किया है, चैम्बर की कंडीशंस बदल गई, कंडीशन बदलने से 15 मिनट के अंदर डिपोजिशन उतना नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आप हर स्टेप्स के ऊपर देन चेकिंग करना शुरू करते हो एंड देन पता लगाते हो कि कहां पर आपका फॉल्ट आ रहा है।
ये सारे के सारे मेथड्स रहते हैं फैब्रिकेशंस में। ओके, नेक्स्ट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है? अभी अभी हमने देखा कि भाई मॉसफेट अगर हम बना रहे हैं तो मॉसफेट में ये हमने सेमीकंडक्टर की एक वेफर ले ली, सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन करना, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑक्साइड बनाना है। दूसरा स्टेप होता है इसको मेटल डिपॉजिट करना, है ना। मेटल को कैसे करेंगे? अब ये, अब आपको आसान लग रही होंगी ये चीजें कि अरे तो बहुत आसान है, तो मेटल डिपॉजिट करना भाई ऐसे कर देंगे। इतना आसान नहीं है मेटल डिपॉजिट करना। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सोचिए कि इतने बड़े साइज के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हमने बनाने हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब अगर मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर बनाने हैं तो कहीं पे तो मुझे 5 नैनोमीटर का ऑक्साइड चाहिए, कहीं पे नहीं चाहिए, फिर कहीं पे चाहिए, फिर कहीं पे नहीं चाहिए, फिर कहीं पे चाहिए, फिर कहीं पे नहीं चाहिए, फिर कहीं पे चाहिए। 5-5 मिनट के जगह पे आपको ऑक्साइड चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे आप कैसे करेंगे? तो ये जो मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि ओके यहाँ पे आपने ऑक्साइड करना है, ये एक प्रोसेस नहीं है। इस एक प्रोसेस के अंदर 10, 12, 15 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं जो सेलेक्टिवली ऑक्साइड को ग्रो कर रहे हैं। अगर ग्रो, मान लो इतना बड़ा कोई टुकड़ा है आपके पास, पीस है सिलिकॉन का, और मान लो उसके पूरे के ऊपर आपको ऑक्साइड ग्रो करना है, ठीक है, बड़ा आसान बात है, रख दो ऑक्साइड ग्रो कर दो। लेकिन अब इतने बड़े पीस के अंदर आपको 5-5 नैनोमीटर पे ऑक्साइड ग्रो करना है और फिर छोड़ना है, फिर ग्रो करना है, फिर छोड़ना है। तब ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है और इस टास्क के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, जो लिथोग्राफी के प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो हर स्टेप में आते हैं और वो अपने आप में 10-10, 15-15 स्टेप्स होते हैं। सो ये सिलिकॉन ऑक्साइड। अब सिलिकॉन ऑक्साइड कैसे करेंगे? द सिंगल थर्मोडायनामिकली स्टेबल ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, है ना। ये बहुत ही स्टेबल ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन है, मतलब सिलिकॉन के ऊपर इमीडिएटली जो ऑक्साइड बन जाता है नेचुरली, बहुत ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड होता है। अब ऑक्साइड बनाने को तो आप सिलिकॉन के ऊपर बहुत तरीके के ऑक्साइड बना सकते हो। कोई कह सकता है मैं HFO2 का ऑक्साइड बनाऊंगा, कोई और कह सकता है, बहुत दुनिया भर के ऑक्साइड आते हैं अलग अलग। लेकिन जो स्टेबल ऑक्साइड है, जिसकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम खराब नहीं होती, वो हमारा कौन सा ऑक्साइड है? वो हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2। तो SiO2 आज तक यूज होता है, लोग रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सक्सेस पाई भी है, पर उतनी सक्सेस नहीं है। स्टिल ऐसा नहीं है कि SiO2 को फुल्ली रिप्लेस कर दिया गया हो, फुल्ली रिप्लेस लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। essential to the fabrication of MOS device, ये MOS device के लिए सबसे ज्यादा essential है। creates extremely high electronic quality gate oxides, है ना। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है, ये बहुत ही हाई इलेक्ट्रॉनिक क्वालिटी का गेट ऑक्साइड बनाता है सिलिकॉन के ऊपर। essential to the patterning of silicon for high temperature processing, ये पैटर्निंग के बहुत काम आता है। पैटर्निंग मीनिंग सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है वो एक बैरियर लेयर होती है। सिलिकॉन ऑक्साइड के अंदर इतनी आसानी से कोई दूसरा एटम क्रॉस नहीं कर सकता सिलिकॉन ऑक्साइड के अंदर से, तो बैरियर का काम करता है। तो मान लिया जाए आपने क्या करना है, मान लिया जाए आपने इस वेफर के अंदर यहाँ पे डोपिंग करनी है और यहाँ पे डोपिंग करनी है, इस जगह में डोपिंग नहीं करनी। मान लो ये पी टाइप वेफर है और यहाँ आपको पर्टिकुलर जगह पे एन चाहिए, पर्टिकुलर जगह पे एन चाहिए। तो आपने क्या किया, सिर्फ इतनी जगह के ऊपर ऑक्साइड कर दिया, यहाँ ऑक्साइड कर दिया और यहाँ ऑक्साइड कर दिया। अब ये कैसे करते हैं, इसके अपने स्टेप्स हैं अलग, कि ऑक्साइड को ऐसे कैसे करेंगे कि यहाँ पे ऑक्साइड ना हो, यहाँ ऑक्साइड ना हो। तो करते तो पूरे पे ही है, ऐसा नहीं है कि आधे पे करते हैं, करते तो पूरे पे ही है। बाद में उसको सेलेक्टिवली एच कर लेते हैं, इतना पोर्शन एच कर लिया, यहाँ से इतना पोर्शन एच कर लिया। अब इस जगह में अब सारी जगह पे डिफ्यूजन कर दिया। अब चूंकि सिलिकॉन ऑक्साइड हाईली मतलब बैरियर लेयर होती है डिफ्यूजन के लिए, सो यहाँ से वो जो डिफ्यूजन आपने जो डिफ्यूजन कराया जिन इंप्योरिटीज का, एन टाइप इंप्योरिटीज का, वो एन टाइप इंप्योरिटीज यहाँ से तो अंदर गई नहीं, जहां जहां पे जगह खाली थी वहां से अंदर जाती हैं और इस तरीके से आपके सोर्स और ड्रेन बन जाते हैं। तो ये बेसिकली इसको कहते हैं पैटर्निंग। आपने पैटर्निंग कर दी वेफर के ऊपर, आपने किसी जगह पे एक पैटर्न बना दिया। Photoresist cannot handle temperatures much above 150 degrees Celsius. Patterned silicon oxide can be used for masking, diffusions, etch, and other process up to temperatures of इतने। तो
वैसे तो मास्किंग कौन करता है, वैसे तो फोटो रेजिस्ट करता है, बट फोटो रेजिस्ट जो है 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रह सकता। एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे फोटो रेजिस्ट लगा के मास्किंग कर दो, बट वो 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर स्टैंड नहीं करता। जब हम डिफ्यूजन कराते हैं तब हमें 1000 डिग्री चाहिए। जब हमें 1000 डिग्री चाहिए तो हमें ऐसे कोई लेयर चाहिए फोटो रेजिस्ट की जगह जो यहाँ पे बैरियर की तरह काम करे। वो लेयर हमारी होती है SiO2 जो हमारी बैरियर की तरह एक्ट करती है और वो किसी भी इम्प्योरिटी को डिफ्यूज नहीं होने देती। Okay, the extreme purity and perfection of the Si-SiO2 interface is the ultimate reason why silicon has been the #1 semiconductor for microelectronics. यही सबसे ज्यादा खासियत है कि सिलिकॉन को आज कोई रिप्लेस नहीं करता, क्योंकि सिलिकॉन के ऊपर सिलिकॉन ऑक्साइड की जो प्योरिटी या जो वो इंटरफेस देता है, ऐसा इंटरफेस कोई भी नहीं देता। इसलिए सिलिकॉन ऑक्साइड इंटरफेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, silicon is the most important in semiconductor industry. Okay, I think time is over. ये 2:40 हो गए हैं. Next teacher will be waiting. Next उसमें हम करेंगे further discussion. ठीक है students? So तो टंगस्टन के ऊपर टंगस्टन ऑक्साइड, वो उसका तो टेम्परेचर और भी ज्यादा है 3000 के अप्रॉक्स, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? बेटे टंगस्टन जो है, टंगस्टन इज ए मेटल, सिलिकॉन इज नॉट ए मेटल। हमें मेटल के ऊपर कोई डिवाइस नहीं बना सकते ना हम, मेटल तो पूरा का पूरा शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एन सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा रहे पीएन जंक्शन को? क्या तुम ऐसा कह सकती हो कि सर ये पीएन जंक्शन को सिलिकॉन का ना बना के टंगस्टन का ही क्यों नहीं बना दे रहे? अगर टंगस्टन का टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस है, इसका ये मतलब नहीं है ना कि टंगस्टन हर जगह यूज हो सकता है। पीएन जंक्शन डायोड में सिलिकॉन क्यों यूज हुआ है? बिकॉज सिलिकॉन की अपनी एक प्रॉपर्टीज है। सिलिकॉन की क्या प्रॉपर्टीज है? ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर है मतलब इसके अंदर हम इम्प्योरिटी, इसकी कंडक्टिविटी हम अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। सिलिकॉन क्यों यूज होता है? कोई भी सेमीकंडक्टर क्यों यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक? उसकी प्रॉपर्टी। मोहित सर जी, मोहित सर। हाँ जी, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर क्लास का टाइम हो गया मेरी। ठीक है सर, थैंक यू बेटे, अगली क्लास में करेंगे। सर मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है।